Hello, friends. Welcome to Unacademy UGC Net. This is Simran Nagra, your economics educator. I've done my economic honors from Jaipur, did my masters from Mumbai. Just after the completion of my masters, I've started working in college for various streams. Plus, I'm having experience of 3 to 4 years. I've also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. ये हमारे यूजीसी नेट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स है. यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एज दे कैन गेट दिस एक्सेस फॉर द subjects over the same platform. Plus, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो you will get to see the free access of the classes over the Unacademy app plus at the YouTube sessions. And आपको देखने को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो what kind of extras you are going to get, that is live classes, quiz sessions, structured courses, unlimited access of various amenities would be there. Iconic में आपको देखने को मिलेगा personalized guidance and the study planning and the test analysis. Expert guidelines would be given. What else you do get to see? Best educators, interactive classes, personalized doubt solving sessions and the study materials would be provided. Please guys hurry up. Subscription का charges बढ़ने वाले हैं. 24 months का अगर आप लेते हैं तो you will get the 10% discount if you are using the code given below. Please do not forget to use the code. Iconic की बात करते हैं तो Iconic में again do not forget to use the code as it is going to provide you the 10% discount. Live classes, test series, unlimited practice paper you get to see so that you can prepare yourself in organized format. Iconic की बात करते हैं तो every amenities would be provided on personalized basis, whether it would be the booster session, doubt solving session, and we are going to make you prepare for the interview part as well. हरी अप गाइज प्लीज 1 सितंबर को हमने ये प्लस कोर्स लॉन्च कर दिया गया है. प्लीज लेट मत करिए एज यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, हाईएस्ट रिटर्न आउट ऑफ द स्पेंडिंग यू आर मेकिंग ऑन. ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन एरिया के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं. प्लस आप इन स्पेशलाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं. जस्ट गो फॉर दी प्लस सब्सक्रिप्शन. And if you are getting the inappropriate content, you can make the claim over it to win the prize. With each passing day, we are making addition in the special classes so that we can make the classes more and more interactive. You can raise the hand just to resolve your doubt at the same time, and you will get notified for the upcoming classes. Lecture notes would be provided anywhere, anytime you do have access for the same. अगर अपन बात करते हैं PYQ सेशन की, वो अपना लॉन्च हो गया है. अपन को देखने को मिलेगा कि अपन को 2 सितंबर से 8 बजे 8:30 PM पे अपनी क्लास रहती है इकोनोमेट्रिक्स की. तो प्लीज गो बाय दैट फॉर्मेट and you will get to see macroeconomics, mathematics, international. All classes would be available on the special classes. You just have to type my name and search for the class. आज अपन बात करने वाले हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की. ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना प्रोजेक्ट क्यों अपन स्टैब्लिश करना चाहते हैं. सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, कंपोनेंट्स देख लेते हैं विच आर इंक्लूडेड इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. सबसे पहले देखते हैं एनर्जी की बात करते हैं. एनर्जी में क्या देखने को मिलता है? दिस इज द कोर पार्ट ऑफ एवरी सेक्टर. ठीक है, आपको एनर्जी एक्सेसिबिलिटी चाहिए ही होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात करो, इंडस्ट्रीज की बात करो, सर्विस सेक्टर की बात करो. आप जिस डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पोर्ट्स और एयरपोर्ट डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इरिगेशन में पावर की जरूरत होती है. मोबिलिटी कैसे करोगे? विदाउट फ्यूल थोड़ी चलेगा. रेलवेज की बात करते हैं. अगेन फॉर एवरी सिंगल एलिमेंट यू आर गोइंग फॉर, यू वुड रिक्वायर द नीड ऑफ अपग्रेडेशन इन द एनर्जी पार्ट. ठीक है, ताकि दूसरे सेक्टर, कोई भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी को फास्ट कर सके और इजी कर सके थ्रू द मीडियम ऑफ एनर्जी. तो आपको एनर्जी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है. दैट इज ओनली वी आर गोइंग फॉर. नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोड्स की. रोड्स आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाएगा. कनेक्टिविटी की बात कैसे? अगर अपन बात करते हैं कनेक्शन की, सपोज यहाँ पे आपको रोड देखने को मिल रही है. इफ यू आर इंक्रीजिंग द रेट्स ऑफ द रोड, ठीक है, बहुत सारी अपन को एक्सेसिबिलिटी मिलेगी. एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है कि पहले एक ही रोड के सहारे यू कुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन.
अब क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा रोड्स होगी उतने ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेंगे, और रिक्वायरमेंट होता क्या है, वो होती है डिमांड। वहां पे आपको इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ेंगे, वहां पे आपको कैंटीन्स देखने को मिलेगी, वहां पे आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी देखने को मिलेगी, 50 तरीके की शॉप्स अवेलेबल होगी, रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होंगे, होटल्स अवेलेबल होगा। दीज आर द एक्सटर्नैलिटीज इकोनॉमी। ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज मतलब ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के तौर पे अपन ले सकते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज को वर्क इन प्रोग्रेस ये प्रोजेक्ट लाने का काम करेगा। ना ही यहाँ पे रोड्स आप कंस्ट्रक्ट करवाओगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप इन्वेस्ट करोगे, ना ही आपके एक्सटर्नल इकोनॉमीज डेवलप होगी। 1 से 2 रोड्स का मतलब है 1 से 2 होटल्स की फैसिलिटी होना, 1 से 2 शॉप्स की अवेलेबिलिटी होना, 1 से 2 इंस्टीट्यूशंस की अवेलेबिलिटी होना, और आपको उन अमेनिटीज का एक्सेस मिल रहा है सो इजीली। ठीक है, आप नहीं सोचोगे कि यू हैव टू गो बाय ओनली द सिंगल रोड, यू कैन टेक द शॉर्टकट ओवर इट। ठीक है, तो आपकी एक्सेस बढ़ रही है, तो जितनी ज्यादा आपकी एक्सेस बढ़ेगी उतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप होंगे और डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इरिगेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, और रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। इरिगेशन और रूरल एरिया यहाँ पे क्या लाने वाले हैं? जब अपन इन दोनों फैक्टर्स की बात करते हैं तो रूरल एरिया में पहले आई डू नॉट टॉक अबाउट दी करंट सिचुएशन, क्योंकि करंट में अपना डिजिटलाइजेशन ने बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन ड्रॉबैक्स का पॉइंट को, उस लेग को कम कर दिया है बहुत ज्यादा हद तक। Every kind of information is available at every doorstep, whether it would be the rural region or the urban region. किसकी वजह से हुआ ये? क्योंकि आपको हर एक जगह मोबिलिटी देखने को मिल रही है, हर एक जगह डिजिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो जितना ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन रूरल एरियाज में अगर आपको मिल रही है, ठीक है, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, ए और बी पर्सन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है, सपोज एक मूवी की भी बात कर रहे हो आप लोग, उस मूवी की बात की कि यार आपने ये मूवी देखी क्या, तो यू आर जस्ट मेकिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस कि भाई आप वो मूवी देखोगे तो यू विल रेज द डिमांड फॉर दी मूवी। सर्विस सेक्टर की तरफ क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हुआ जस्ट बाय अ सिंगल पर्सन। क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी और वो इंफॉर्मेशन डिजिटलाइजेशन ने फैलाई, जस्ट एक बातचीत ने फैलाई, जस्ट एक इंफॉर्मेशन ने ये चीज, इस कंडीशन को लीड किया। मोबिलिटी की बात, जितना ज्यादा चीजों को फ्री छोड़ा जाएगा, जितनी ज्यादा प्रोसेस को इजी बनाया जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग दी अपलिफ्टमेंट इन दी डिमांड पार्ट, वी आर अपलिफ्टिंग दी डिमांड सिनेरियो। ठीक है, कि आप कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर रहे, एवरीथिंग यू आर कीपिंग द इजी एक्सेस फॉर। तो ये सारी चीजें आपको क्या करके दे रही है, बूस्ट करके दे रही है। डिजिटलाइजेशन का मैंने ऑलरेडी बात बता दी कि एक्सेस मिलेगी हर एक चीज के लिए, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि सच एंड सच इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी करोगे आप डिमांड, प्लस ये इंफॉर्मेशन सबको मिल रही है। इट इज नॉट लिमिटेड टू द अर्बन एरिया और द टाउन, इट इज अवेलेबल टिल दी ग्रास रूट लेवल। बस दिक्कत इतनी है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको फैलाना है, जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन फैलेगा, उतनी ज्यादा डिमांड फैलेगी, उतनी ज्यादा एक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे लास्ट पॉइंट रहा है अपना ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन में अपन ने रेलवेज की तो बात कर ही ली, रोड्स की बात कर ही ली, ट्रांसपोर्टेशन की जब अपन बात कर रहे हैं कि अपन अगर ट्रांसपोर्ट, मान लो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, एक के बिना दूसरा रन नहीं कर पाएगा। लाइक कम्युनिकेशन करके आपने डील साइन किया कि गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को करना है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, या फिर अपन को ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का। वो ट्रांजैक्शन बिना एक ट्रांसपोर्टेशन के हो जाएगा क्या? नहीं। इन ऑर्डर टू बिल्ड दी इंफ्रास्ट्रक्चर एंटायरली यू हैव टू गिव फोकस ऑन दी ऑल दी सेक्टर्स। ठीक है, सारे सेक्टर्स आपकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, और जितना ज्यादा आप एक्सेस कर पाओगे रिसोर्सेज को, उतनी ज्यादा चीजों की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन डिमांड तो बढ़ जाएगी, उसके लिए पहले आपको सप्लाई साइड में ध्यान देना है, और उन सारे सप्लाई साइड का कंट्रीब्यूशन ये सारे फैक्टर्स करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, प्लस ये सारे फैक्टर्स आपके एक्सटर्नल इकोनॉमीज को बिल्ड करेंगे। अब एक और चीज देखो, आपको बूस्ट करना है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। वो बूस्ट कैसे होंगे? जब आपकी इकोनॉमी की कंडीशन होगी
प्लस में, मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस लानी पड़ेगी। अब वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आएगी कैसे? जब आपको इकोनॉमी का सिचुएशन ठीक होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जब आप लोग एक्सटर्नल इकोनॉमीज बिल्ड कर देंगे ना, तो पॉजिटिव ही इंस्टिंक्ट प्रोवाइड करेगा वो इकोनॉमी में, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो पॉजिटिवली स्टिमुलस ही लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है यार रोड तो बिल्ड हो गई, इस रोड पे रोज व्हीकल काम करेंगे, ठीक है, व्हीकल चलेंगे, इस व्हीकल को रुकने की अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे एक शॉप भी होनी चाहिए, रुकने का ठिकाना मतलब होटल भी होनी चाहिए, ठीक है। होटल के साथ में कोई दिक्कत आ गई तो हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, किसका? प्राइवेट का, कि अपन को पर्टिकुलर ढांचा तो मिल गया, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं? स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें क्या काम करेगी? अपनी ग्रोथ को बिल्ड करने में। तो आप देख सकते हो अपन को कितना सारा खर्चा चाहिए, बहुत सारा खर्चा चाहिए। अब अपन ने इसकी शेयरिंग कैसे की है वो पढ़ने वाली बात है। अपन लोगों ने इसका एलोकेशन किया है कि 39% सेंटर एलोकेट करेगा, ठीक है, शेयर करेगा। सेंटर के बाद स्टेट करेगा 39। सेंटर और स्टेट का जो शेयरिंग रहेगा वो रहेगा सेम, ठीक है, वो आपको सेम देखने को मिलेगा। सेकंड आपको देखने को मिल रहा है 22% शेयर होल्डिंग लेके जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। कहने का मतलब आपको प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि अपन को पता है कि प्राइवेट चलते हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग, इफिशिएंसी अपन को देखने को मिलती है, और अपने पास इतना फंड भी नहीं है कि भाई सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन और प्रोजेक्ट्स के डिसीजन अपन अकोमोडेट कर सके। तो दो तरीके से फायदे होंगे, एक तो फ्री फोकट की अपन को इफिशिएंसी देखने को मिल गई, दूसरी चीज अपन को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मिल गए। तो दोनों चीजें अपनी क्या हो गई? अकोमोडेट हो गई। अब देखो यहाँ पे नीड बोल लो इसको या फिर वे फॉरवर्ड बोल लो, व्हाटसोएवर यू वांट टू कॉल इट, पॉइंट हियर इज दैट कि आपको चाहिए पैसा, ठीक है। किसके लिए पैसा चाहिए? ताकि आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी, आपको पता है ना कि आपकी ग्रोथ नीचे जा चुकी है, आपको अपलिफ्ट करना है। कैसे करोगे? आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। किन में? लोगों में, ठीक है, पब्लिक में आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना है। वो कैसे करोगे? स्टिमुलस प्रोवाइड करके, मतलब आप इंसेंटिव्स दोगे उनको, ठीक है, इंसेंटिवाइज पॉलिसीज के थ्रू। क्योंकि अपन को पता है वो पैसा जो जिसकी अपने पास कमी है, मतलब गवर्नमेंट के पास जिन पैसों की कमी है, वो अकोमोडेशन अपन को मिल सकती है किसके थ्रू? प्राइवेट लोगों के थ्रू। और प्राइवेट लोग ऐसे ही थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, इनको क्या चाहिए? इंसेंटिव्स। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, इनके पास नहीं है पैसा, लेकिन इनके पास क्या है? असेट, ठीक है, असेट है। तो ये क्या करेंगे? एक काम कर लो, ये प्राइवेट पर्सन है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? इनके पास जो असेट है, एक काम कर लो, या तो लीज पे ले लो अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है तो, या फिर एक काम कर लो थोड़ा सा शेयर ले लो, ठीक है, 20-25% का, या फिर एक काम करो 50% प्लस होल्डिंग, 51% प्लस होल्डिंग ले लो, जिसको अपन प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। यही करेंगे ना। अपने पास अगर पैसा नहीं है तो अपन क्या करेंगे? अपना कुछ शेयर है तो बेच दो, ठीक है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दो, ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर संभाल लेंगे। प्रोडक्टिव कैपेसिटी उनको बिल्ड करना आता ही है, ठीक है, या फिर आप मेजर पोर्शन को सेल कर दोगे, ठीक है। मेजर पोर्शन वही सेल करना है जो अपने लॉस ओरिएंटेड है और जिनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी हर एक तरीके से एक्वायर हो जाए। तो यहाँ पे फायदा हुआ ना, आपके पास फाइनेंस नहीं था, ए जो गवर्नमेंट थी, इनके पास असेट है, तो अगर ये अब लैंड कर भी देती है, लीज पे दे भी देती है, किसको? बी पर्सन को, तो इनको क्या मिल गया? असेट का असेट मिल गया, ठीक है, और इनको असेट पे क्या नहीं करना पड़ा? इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा, मतलब ह्यूज कॉस्ट भी नहीं लगी, बी की ह्यूज कॉस्ट भी नहीं लगी, लीज पे मिल गया, या फिर छोटा मोटा शेयर खरीद भी लिया तो ह्यूज कॉस्ट भी नहीं मिली, ठीक है, लगी इनकी, और इनको इफिशियंसी भी मिल जाएगी, इनको रिटर्न भी मिल जाएगा, और इन गवर्नमेंट का काम फुलफिल हो जाएगा, किसका? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड करने का। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों एस्पेक्ट से अपन को क्या देखने को मिल रहा है? +1 देखने को मिल रहा है कि दोनों चीजें क्या बिल्ड कर रही है? इकोनॉमी बिल्ड कर रही है। तो इकोनॉमी बिल्ड कर रही है, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन एक और चीज देखो, यहाँ पे इंक्लूसिवनेस के साथ हो रहा है सब कुछ, ये सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट है। इंक्लूसिवनेस क्यों बोला? मैंने डिजिटलाइजेशन की बात की, ठीक है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात की। डिजिटलाइजेशन का मतलब है चीजों में, रूरल अर्बन एरिया में हो चुका है गैप कम। अगर जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन फैलेगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी,
और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा मार्केट बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये गैप क्या कर रहा है, कम कर रहा है, किसका, रूरल और अर्बन एरिया का। प्लस आपको देखने को मिल रहा है जितना ज्यादा गैप कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन रेट जो है पर्सोनल्स की वो बढ़ रही है। अपन को यही तो चाहिए। इंक्लूसिवनेस क्या है, इंक्लूसिवनेस यही तो है, हिस्सेदारी बढ़ाना। जो भी आपके पास पब्लिक है उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना है। तो यू आर अपलिफ्टिंग द ग्रोथ, uplifting the growth along with the inclusiveness. तो ये project is going to inculcate the positive returns if the things will be undertaken so nicely, ठीक है, अच्छे से undertake की गई। If you have literally enjoyed the lecture, please do not forget to like, share and subscribe, and do not forget to use my code while unlock the videos of Unacademy app. Please do not forget to use the Unacademy app for the preparation of the competitive exam. Thank you so much.